Hello, students. We are meeting after a very long time, probably after a month or after a gap of around 2 months. Courtesy Corona all around, and I had a little difficult time in last 1.5 months. Could not really come down to my computer and do all this work. Sorry for this break in these sessions. And people have been asking, all these sessions over? No, it's not like this. I have decided, rest up to God. I have decided I will complete the whole word power with you, this word power book with you. So we are on today. We are again beginning to with this session number 17. We have done session 16 so far, and if all goes well, I will continue with these sessions. Everything is fine right away now. So now this is session 17. What is session talking about? You know this well. This session 17. Here he is talking about the knowing, the word know. What all words indicate the know. Psychopaths commit antisocial and unsocial unconscionable acts. Unconscionable, that does not really sound to their conscience. So psychopaths commit antisocial and unconscionable acts. They are not troubled by conscience. Kindly say this word as conscience. Never say this word conscience. Okay. Pronunciation for this word is, if you can just check this word pronunciation, I might have written the same pronunciation many times earlier also. I always say you can learn like this: conscience. Okay, there's nothing right, there's nothing wrong in writing in Hindi to make yourself sure of it. What is this conscience? So psychopaths commit antisocial and unconscionable acts. They are not troubled by conscience. Conscience, उनकी अंतरात्मा जो होती है, guilt, remorse, etc. over what they have done. Antisocial, I've written the word meaning they are contrary to the customs of society and causing annoyance and disapproval in others. Antisocial है. Okay, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट आई कीप राइटिंग सो दैट इट haunts you. And unconscionable, that does not really feels right to your conscience. तो नॉट राइट और रीजनेबल, आपको लगता है ये सही नहीं है, अनकॉन्शनेबल है, यानी वो एक बार आपके कॉन्शियस को हॉन्ट जरूर करता है. सपोज आप किसी का नुकसान करने वाले हो तो एक बारी अंदर से आवाज जरूर आती है, यार यू आर डूइंग रॉन्ग, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं उसने भी कर रखा तो क्या फर्क पड़ता है, तो हम उसको भूल जाते हैं. बट कॉन्शियस सम वंस एटलीस्ट कॉल्स यू दैट यू आर नॉट डूइंग गुड. तो अनकॉन्शनेबल, नॉट राइट और रीजनेबल. And remorse is regret. Penitence is a very good word for this. Remorse, regret, penitence is the word. So psychopaths commit antisocial and unconscionable acts. They are not troubled by conscience. उनकी आत्मा एक बार भी उनको धिक्कारती नहीं है. Not by conscience, guilt, remorse, etc. over what they have done. Now, unconscionable and conscience. अब ध्यान से सुनिए. Unconscionable and conscience are related in derivation. देखा जाए तो डिराइव तो एक जैसे ही वर्ड से हुए हैं. द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लैटिन सोशियो, दैट मीन्स नो. सोशियो इज टू नो. द सेकेंड वर्ड लैटिन सियंस, नोइंग. अब देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं नो से ही वर्ड बन रहे हैं. एंड बोथ यूजिंग द प्रीफिक्स कॉन. कॉन का मतलब विद होता है, तो अनकॉन्शनेबल, अन तो आप जानते हैं नेगेटिव होता है, तो बोथ वर्ड्स आर बेसिकली अबाउट द नोइंग होता है. नोइंग टू योर ओन सोल, कॉन्शियस. Etymologically, then, your conscience is your knowledge with a moral sense of right and wrong. आपकी conscience क्या है? जो आपको बचपन से सिखाया कि यार ये ethically सही है या नहीं सही है, उसकी knowing है. If you are unconscionable, your conscience is not working, or you have no conscience, the noun form of unconscionableness और conscionability हो जाएगा. अगर आप देखेंगे तो नेस लगाने पर ऑब्वियसली वो नाउन कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आईटी वे लगाने पर भी नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हम पहले भी कर चुके हैं. होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो यानी दीज टू वर्ड्स हैव कम फ्रॉम द रूट वर्ड विच बेसिकली मीन्स नो होता है, अनकॉन्शनेबल और कॉन्शियस. लेट्स अंडरस्टैंड. कॉन्शियस आल्सो फ्रॉम कॉन प्लस सोशियो. अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्शियस वर्ड कहां से आया है? कॉन प्लस सोशियो, दोनों को जोड़कर बना है. कौन अभी हमने बोला था विद होता है, एंड सोशियो इज, यानी उससे क्या बना? नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस और सेंसेशंस और ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड वन. अभी तभी तो बोलते हैं बड़ा कॉन्शियस हो गया,
या वो अनकॉन्शियस था। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो गया ऐसा मान लीजिए, यानी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वो उसे नहीं पता है। कॉन्शियस मतलब बड़ा ख्याल रखता है। कई बार इफ यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, इफ यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, इफ यू आर लुकिंग वेरी समथिंग रॉन्ग विद योर अटायर, आप पार्टी में जाते हैं कोई टोक देता है या कह देता है कि अरे बड़े अच्छा लग रहे हो, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी यू आर अवेयर, नाउ यू आर लुकिंग वेरी गुड, और अवेयर कि यार ये कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, यानी अवेयरनेस से है। तो कॉन्शियस ऑल्सो फ्रॉम द वर्ड कॉन मीन्स विद, प्लस सोशियो इज नॉलेज, यानी यू आर ऑल्सो कॉन्शियस मतलब आपको नॉलेज हो जाती है, अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस और सेंसेशंस और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ये कॉन्शियस होना होता है। आप कौन और श्रेयस, आप सोशियो, कौन और श्रेयो को देखिए तो अपने आप आपको वर्ड मिल जाएगा। साइंस फ्रॉम सियंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज एज अपोज्ड फॉर एग्जाम्पल टू बिलीव, फेथ, इंट्यूशन और गेस वर्क, यानी जो हमारे इंट्यूशन थे, जो हमारे बिलीव थे, जो हमारे गेस वर्क थे, उसका कॉन्ट्ररी है क्या, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। दैट इज व्हाट द साइंस इज। आप कुछ भी बिलीव करते थे पहले, वो यूज टू बिलीव कि अर्थ इज द सेंटर, तो वो हमारा बिलीफ था, बट लेटर साइंस केम टू नो, सिस्टमाइज्ड नॉलेज हो गई कि नो सन इज द सेंटर, सो दैट इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज होती है, एज अपोज्ड फॉर एग्जाम्पल टू बिलीफ, यानी वो बिलीफ के, फेथ के, इंट्यूशन और गेस वर्क के अगेंस्ट होती है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन। एड लैटिन ओमिनिस, इसका मतलब है ऑल, एंड सियंस टू कंस्ट्रक्ट ऑमनीसिएंट, अगर आप बनाओगे तो सियंस को जोड़ोगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा ऑमनीसिएंट। सियंस हमने देख ही लिया, ऊपर वर्ड हमने पहले ही देखा था, नॉलेज है, तो ऑमनीसिएंट मतलब ऑल नॉलेज, ऑल नोइंग, पोसेस्ड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज हो जाता है, यानी एनीवन हु इज ऑमनीसिएंट वी से उसको सारी नॉलेज है। द नाउन इज ऑब्वियसली ऑमनीसियंस हो जाएगा। नाउ एड द प्रीफिक्स प्री, अगर आप प्री जिसका मतलब बिफोर होता है, टू सियंस, अगर सियंस से पहले बिफोर लगा दें तो सियंस मतलब नॉलेज है और बिफोर मतलब पहले से है, यानी पहले से ही आपको समझ आ जाए कुछ होने वाला है, समथिंग ऑफ दिस काइंड, यानी एड प्रीफिक्स प्री बिफोर टू सियंस टू कंस्ट्रक्ट प्रिसिएंट वर्ड आ जाएगा। प्रिसिएंट नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे ऑकर, कुछ लोगों को ये सिक्स सेंस होती है, हल्का सा आइडिया लग जाता है कुछ होने वाला है, और नॉर्मली ऐसा हो जाता है। सो साइकिक और पोजेस्ड ऑफ अनयूजुअल पावर ऑफ प्रेडिक्शंस, साइकिक आपको दो तरीके से पढ़ा था, याद है आपको, ये साइकिक एबिलिटी होती है आपके पास, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्स सेंस होती है, और अनयूजुअल पावर ऑफ प्रेडिक्शन हो जाती है। दस नाउन इज प्रीसियंस हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, प्री और सिएंट हमने सिर्फ इतना देखा है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। एंड फाइनली एट द नेगेटिव प्रीफिक्स नी, एन ई जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, टू सियंस, अगर हम सियंस वर्ड में अगर एनी जोड़ देंगे तो नेसेंट वर्ड बन जाएगा। नेसेंट इज नॉट नोइंग और इग्नोरेंट और वेरी न्यू विच इज कमिंग अप, नेसेंट हो जाता है, यानी वेरी इन द अर्ली स्टेज, वैसे इन्फेंसी स्टेज जिसको नॉलेज नहीं होती वो नेसेंट हो जाता है। ओके, दैट इज नी इज नेगेटिव, सिएंट इज नॉलेज, यानी नॉलेज नहीं है, तो जिसको आप बोलते हैं अमेचर काइंड ऑफ थिंग, दैट इज ऑल्सो इज a nascent हो जाते हैं। ओके, now can you by analogy with the previous two words write the noun form of nascent? अब nascent का अगर आप noun लगाना चाहेंगे तो nascence हो जाएगा obviously, hope you understand that। pronounce भी हमने करके आपको दिखाई दिया कि nascence हो जाता है। now let's see, फूल सम ऑफ द पीपल, फूल सम ऑफ द पीपल आप ऐसे पढ़ चुके हैं, याद है आपने लायर पढ़े थे बहुत सारे टाइप के, उसमें एक लायर था जो कुछ लोगों को उल्लू बना सकता था, ग्लिब, यू नो ग्लिब लायर था। ग्लिब इज फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश रूट दैट मीन्स स्लिपरी, जो जुबान पर आ गया वो बोल दिया, याद है, बस ये ग्लिब होता है। नाउ ग्लिब लायर्स और ग्लिब टॉकर्स आर स्मूथ एंड स्लिपरी, दे हैव ready answers, fluent tongue, a persuasive air, but such is the implication of the word, they fool only the most nascent, for their smoothness lacks sincerity and conviction। परसुएसिव एयर, परसुएड करना किसी को क्या होता है, गुड एट परसुएडिंग अदर, परसुएसिव तो पढ़ा है ना, आप कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी परसुएसिव, यानी वो बड़ा दूसरे को परसुएड कर सकता है। तो आप पूछेंगे परसुएड क्या है, तो परसुएड करने का मतलब है प्रोवाइड ए साउंड रीजन टू बिलीव समथिंग, किसी को कन्विंस कर देते हैं। सपोज कोई मीटिंग हो रही है, बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप किसी आदमी को कहते हो कि यार ये बंदा जाएगा समझा लेगा सबको, ही हैज, भगवान कृष्ण वी से लाइक दैट इन अवर मैथोलॉजिकली, कृष्णा हैड दैट परसुएसिव पावर, वो दुर्योधन को भी समझा पाए, वो कर्ण को भी समझा पाए, वो अर्जुन को भी समझा पाए, उन्होंने कुंती को भी समझाया, बुक ऐसा कहती है। इट मीन्स ही हैड अ ग्रेट परसुएसिव नॉलेज,
जहाँ सामने वाले को उनकी एबिलिटी थी, परसुएसिव स्किल थी कि वो सामने वाले को कन्विंस कर लेते थे, प्रोवाइड अ साउंड रीजन टू बिलीव समथिंग, कि यार जो मैं कह रहा हूँ ये इसलिए सही है, तो वो मान जाता था सामने वाला। परसुएड करना होता है। नाउ ए परसुएसिव एयर, एयर का मतलब होता है स्टाइल, यू नो दिस वर्ड, एयर होता है परसुएसिव एयर, उनका एक स्टाइल होता है। बट सच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड, इम्प्लीकेशन मतलब लाइकली कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। वैसे तो इम्प्लीकेट उसको भी बोलते हैं, किसी को लीगल उसमें मैटर में इम्प्लीकेट करते हैं, मैंने आगे लिखा भी है, द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्लीकेटेड दैट इज इन्वॉल्वड इन ए क्राइम, बट हियर इट इज नॉट सेइंग द इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेट करना मतलब उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। सच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड, दे फूल ओनली द मोस्ट नेसेंट। अब आप समझ गए, मोस्ट नेसेंट मतलब बहुत जरा भोंदू टाइप का बंदा हो, जो इग्नोरेंट टाइप का बंदा हो, उसी को वो उल्लू बना पाते हैं। फॉर मतलब यहां पर होता है क्योंकि, बिकॉज देयर स्मूथनेस लैक सिंसियरिटी एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है, ए फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन फाउंड गिल्टी इन ए क्रिमिनल ऑफेंस। वो कन्विक्ट से कन्विक्शन बन गया, वो तो गिल्टी वाला हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर इस सेक्टर में यहाँ पर हमारी कन्विक्शन का मतलब क्या है, आपका बिलीफ है। आप कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ माई कन्विक्शन आई डिड दिस। Gandhi went to Champaran to help the people. He had the conviction that he wanted to serve the mankind. Because of that, he broke the law of the British. ठीक है, उन्होंने कोर्ट में कहा कि यार माई कॉन्शियस सेड दिस, कि मुझे इनकी हेल्प करनी है। इट इज माई कन्विक्शन, माई बिलीफ दैट आई एम मेंट हेयर टू हेल्प द मैनकाइंड। कन्विक्शन इज दैट ओनली, ए फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, कन्विक्शन होता है। यानी जो ग्लिब लायर्स होते हैं वो ऐसा झूठ बोलते हैं जो सिर्फ भोंदू को इस पकड़ में नहीं आता थोड़ी देर के लिए, तो उसकी अगर आप नाउन की बात करेंगे तो वो ग्लिबनेस हो जाएगा। तो फूल सम पीपल, वो ग्लिब लायर्स हमने पहले बोला है, यू नो इट वेल। हर्ड्स एंड फ्लॉक, हर्ड किसका होता है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द हर्ड। हर्ड आपको पता है ना, ग्रुप किसको बोलते हैं, फ्लॉक भी ग्रुप ही होता है। हर्डर आपने पढ़ा है, जीसस वाज ए हर्डर, यू नो दैट शेफर्ड, हर्ड इन दिस थिंग। अब यहां से एक वर्ड निकाल के लाते हैं, एग्रीजियस। रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, एग्रीजियस। तो एग्रीजियस इज द प्रोनाउंसिएशन, इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, अब ये ध्यान रखिए, ग्रेक्स, ग्रेजिस, हर्ड और फ्लॉक। ये जो लैटिन वर्ड है ग्रेक्स और ग्रेजिस, जिसका मतलब है हर्ड और फ्लॉक होता है। एंड एग्रीजियस लाई, एक्ट, क्राइम, मिस्टेक एटसेट्रा इज सो एक्सेप्शनली विशियस। विशियस मतलब क्रूअल होता है, विशियस सर्कल हम बोलते हैं, यानी क्रूअल सर्कल। so exceptionally vicious that it conspicuously, conspicuous होता है मतलब clearly visible, that it conspicuously stands out, ठीक है, फ्रॉम दी हर्ड और फ्लॉक ऑफ अदर बैड थिंग्स। यानी जो सारी चीजें हैं, जो बैड थिंग्स है, कोई एग्रीजियस है, वो उन सबसे ज्यादा एविल होती है, वो उसमें से स्टैंड आउट करती है, क्योंकि ग्रुप में से अलग निकलती है। ग्रेक्स का मतलब क्या हो गया, ग्रुप है। तो एग्रीजियस में वर्ड आया ई एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या बोल रहा है, ई एक्स इज आउट, यू नो। तो इट मीन्स जो एग्रीजियस होगा वो अपने ग्रुप्स में से, ग्रेक्स में से आउट हो जाएगा, तो यानी वो अलग से दिखने लगेगा। तो फ्रॉम ऑल द इविल थिंग्स, दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इविल वी कैन से। तो एग्रीजियस इज दैट ओनली। Egregiousness, you can very well understand the noun. And now, a person who enjoys companionship, who etymologically likes to be with the herd, जो herd के साथ रहना पसंद करता है, who reaches out to for friends and is happiest when surrounded by people, such a person is known as gregarious. जो बड़ा sociable होता है उसको बड़ा gregarious कहते हैं। By nature, human is a gregarious character, you know. हम सब कंपनी में रहना पसंद करते हैं। अभी ग्रेगेरियस में भी वर्ड आपका ग्रेक्स ही यूज हुआ है। पर्पस इज आप कहाँ यूज करेंगे, व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, व्हेन यू आर राइटिंग ए नोट, आप बताना चाहते हैं कि वो बड़ा ऐसा है जो फॉन्ड ऑफ कंपनी है, तो फिर अब क्या लगाओगे, तो वहाँ वर्ड क्लिक होना चाहिए कि यार ये ग्रेगेरियस है। और कोई जैसे एक्ट किसी ने कर दिया तो आप बोलेंगे एग्रीजियस है। पर्पस इज नॉट टेलिंग यू द रूट वर्ड, पर्पस इज टेलिंग यू दी थिंग कि आप याद रखिए ग्रेक्स है तो यानी ग्रेगेरियस आएगा, एग्रीजियस आएगा। अच्छा ये वर्ड कहाँ यूज होगा, वो जब व्हेन यू राइट एन आर्टिकल, व्हेन यू राइट समथिंग, वो आपको हिट करना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यार ये वर्ड पढ़ रखा है। बाकी सिनोनिम एंटोनिम एग्जाम में तो आप करेंगे फॉर श्योर, बट इट इज नॉट ओनली कि आप एसएससी सीजीएल देते हैं, इट इज नॉट ओनली आप ये कॉम्पिटेटिव देते हैं, इन लाइफ ऑल्सो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो कैट हो, मैट हो, जी मैट हो, कोई भी देखता हो, चाहे 12th का स्टूडेंट हो, एक स्टेज पर आकर आपको आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा। आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, आपको कुछ लिखना होगा। एंड व्हेन योर राइटिंग स्किल इज गुड, यू आर कंसिडर्ड अ ब्रीड अपार्ट।
तो उसमें ये वर्ड मैटर करेंगे, आपको याद रहने चाहिए। एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑफ कोर्स ग्रेगेरियस, आपको पता ही है। दे प्रेफर ह्यूमन कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन, लाफ्टर इन रिलेशनशिप टू सॉलिट्यूड। वो अकेला रहना नहीं चाहते। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? सॉलिटरी जिसे कहते हैं, यू नो, ऑफ बीइंग अलोन। एक इसके लिए आपने कहीं वर्ड पढ़ा हो तो अलूफ पढ़ा होगा आपने वर्ड। एक वर्ड होता है सेक्लूजन, यू नो, दिस इज ऑल्सो दी वर्ड्स टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, सेक्लूजन होता है। तो वैसे तो वैसे एक नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी आप बोल सकते हैं एलियनेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाना, अकेले ना, दिस ऑल टॉक अबाउट दी अलोन काइंड ऑफ थिंग। द सफिक्स नेस एज यू नो कैन बी एडेड टू एन एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट ए नाउन। बचपन से करते आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अब हम देखेंगे ग्रेगेरियस के लिए हमने वर्ड बना दिया ग्रेगेरियसनेस, ये तो सब आपको आ गया होगा। एड द प्रीफिक्स कॉन। अब कॉन का मतलब क्या है? आपने बोला था विद, कॉन विद टुगेदर। कॉन का मतलब क्या? प्रीफिक्स कॉन जिसका मतलब विद है या टुगेदर है। टू ग्रेक्स जिसका मतलब क्या हुआ? आप अगर ग्रेक्स अभी हमने पीछे देखा था, यानी अगर आप कॉन को ग्रेक्स के साथ जोड़ेंगे टू गेट द वर्ड कॉन्ग्रेगेट आ जाएगा। नाउ वी हैव द वर्ड कॉन्ग्रेगेट हो जाएगा। कॉन्ग्रेगेट इज बेसिकली व्हाट? एड द प्रीफिक्स एसी। अगर आप एसी जोड़ेंगे जिसका मतलब होता है अपार्ट, टू बिल्ड द वर्ड सेग्रेगेट। अगर आप एसी जोड़ेंगे तो उसका मतलब है अपार्ट। अब ये रूट वर्ड याद रखना है, ये एसी है, ठीक है, और कॉन जो है वो विद है, याद रखिएगा। ओके, टू बिल्ड द वर्ड सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। आप सेग्रीगेट करते हैं, मान लीजिए आपको 10 चीजें दी हैं, तो हमने कहा यार जो इस कलर वाली चीजें उनको सेग्रीगेट कर लीजिए, तो यानी एस और ग्रेक्स, यू नो दिस, तो यानी उसको अपार्ट कर लिया। यू से टू बिल्ड द वर्ड सेग्रीगेट। एड द प्रीफिक्स एड। एड का मतलब टू या टू वर्ड्स हो जाता है। अब वो कई बार ऐसा होता है कोई एजी बन जाता है जब वो किसी रूट वर्ड जी से पहले आता है, तो फिर आपका वर्ड क्या हो जाएगा? एग्रीगेट हो जाएगा। एग्रीगेट भी निकालते हैं ना मार्क्स, आपके एग्रीगेट आता है, तो यानी अब एग्रीगेट में तो बेसिकली एजी जो आ रहा है वो ही सेइंग यू कि अगर एडी है जिसका मतलब टू होता है, वो अगर किसी जी वाले वर्ड के आगे आएगा एजी बन जाता है वो। तो यहां पर हमने, अब ग्रेगेरियस वर्ड जो था तो हमने वहां पर ग्रेगेट, तो ग्रेगेट वर्ड के आगे एजी लगा दिया तो एग्रीगेट बना दिया। समथिंग यू नो, यू हैव टू फाइंड आउट कि एग्रीगेट आपका उसका सम अप कर गया। तो नाउ वी हैव द वर्ड सॉलिट्यूड, वी हैव द वर्ड कॉन्ग्रेगेट, गैदर इनटू क्राउड और मास। कॉन्ग्रेगेशन आपने कई बार पढ़ा होगा, कीर्तन मंडली होती है तो दैट काइंड ऑफ ग्रुप इज नोन एज कॉन्ग्रेगेशन होता है। यानी कॉन विद मीन्स और एग्रीगेट का मतलब वो ग्रेगेरियस वर्ड जो ग्रेक्स से आया है उसका मतलब सारा ग्रुप है, तो फिर कॉन्ग्रेगेट हो जाता है। तो नाउ यू नो द वर्ड कॉन्ग्रेगेट, नाउ यू नो द वर्ड सेग्रेगेट एंड यू नो द वर्ड एग्रीगेट। whenever you find this word आपको पता चल जाना चाहिए कौन आ रहा है, सी आ रहा है, एड आ रहा है और यहाँ पर ग्रेक्स वाला वर्ड आ रहा है, then you can very well understand कि यार ये वर्ड कहाँ से निकल के आ रहा है। Let's see what we have. When people gather together in a herd or flock, तो उसे क्या बोलेंगे जब ग्रुप में आ जाएंगे? अभी आपने पढ़ा मेरे साथ, जब वो ग्रुप में आ जाएंगे तो वो कॉन्ग्रेगेट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। द नाउन इज कॉन्ग्रेगेशन, वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ विच इज ए रिलीजियस फ्लॉक। मैंने अभी आपसे बोला था कीर्तन मंडली होती है तो उसको कई बार कहते हैं रिलीजियस फ्लॉक को कॉन्ग्रेगेशन कह देते हैं। नाउ पुट पीपल और थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द हर्ड एंड यू व्हाट यू डू। जब आप उसको आप ग्रुप से अलग करते हो तो वो क्या बन जाता है? तो आप उसे सेग्रेगेट करते हो। अभी हमने देखा था एसी जो है अपार्ट हो जाता है। कैन यू कंस्ट्रक्ट द नाउन बाई एडिंग द सुटेबल नाउन सफिक्स। इससे अगर आप कुछ वर्ड बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? अगर सफिक्स छोड़ के तो आपके बनाएंगे सेग्रीगेशन। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सेग्रीगेशन यू हैव डन, ओके। एंड देन ब्रिंग इंडिविजुअल आइटम्स टू और टूवर्ड्स द हर्ड और फ्लॉक। अब क्या होगा ये, जब आप सब चीजों को इकट्ठे करके फ्लॉक में लेकर आ जाते हैं, अभी हमने करा था पिछली स्लाइड में, दैट इज एग्रीगेट। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। अब इसका आप क्या नाउन फॉर्म बनाएंगे एग्रीगेट का? तो यू कैन वेरी वेल मेक एग्रीगेशन। तो इट इज इजी, he is just trying us to really work a little, you know these words. And now the verb aggregate also means to come together to or towards the herd, that is together into a mass or whole, or by extension to total or amount to, वही जो है मार्क्स वाला total or amount to. So aggregate, another noun form pronounced aggregate,
is a group or mass of individuals considered as a whole, a herd or a flock, as in the phrase people in the aggregate. ओवरऑली हमने कह दिया कि पूरे मास को भी हम एग्रीगेट कह सकते हैं, और एग्रीगेट आपका टोटल का भी सम अप हो सकता है, वो एग्रीगेट हो जाता है। और वो नीचे लिखकर भी बता रहा है कि कंबाइन इनटू ए होल हो जाता है, दैट इज व्हाट द एग्रीगेट होता है। तो वी हैव अंडरस्टूड segregate, aggregate, congregate, cracks, congregation, and then we know the word, that the fellow is gregarious. So all these words are coming from the word con, grex, see, and all those things. Hope you have understood these words. That's all I have for you in section 17. It's a very short session. I have given this session after a very, very long time to you because of certain reasons I've already described. Kindly do the exercise afterwards this session, and we will come up with the sessions 18 very soon. Thank you very much for being watching and being with me. Thank you. God bless you.